Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, and Adab to all my valuable viewers. So today we are going to discuss very hard and a genuine reality which everyone, every professional, every individual, whether he is a businessman or an employee, manager, chief manager, senior manager, head of the department, or wherever he is, he must understand these facts, and these following I will be giving and explaining. There are 9 hard pills which you have to swallow. ये ना 9 कड़वी गोलियां हैं जो कि बहुत सख्त है, जो कि आपको खानी पड़ेंगी अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी विजडम के बारे में, अपनी मैनेजमेंट के बारे में, अपने टेक्निकल स्किल के बारे में, जो कि आपको जाननी है. यू मस्ट नो एंड यू मस्ट, दीज आर ऑब्वियसली देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट दीज आर द रियलिटीज आर लाइफ. एंड देर आर सर्टन थिंग्स विच यू एंड यू ओनली नो, others will not be able to know, since you know it is in your interest. तो आप ही उसको ठीक कर सकते हैं, आप ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आप ही इन सब हार्ड पिल्स को जब आप खाने स्वेलो करने के बाद genuinely you try to improve upon, and you will be more successful professional. So what first hard pill is, you are under the impression that you are a very special man, very special professional, and knowing more than anybody else. You are an exceptional product, which you are not. You are under the misconception that you are the best in the world. You are number one. But you are not special. Your uniqueness does not guarantee success. जिस चीज़ का आपको बहुत घमंड है कि आप एक यूनिक करेक्टर हैं, जो कि आप ही जानते हैं, वो सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. One of the greatest example I will tell you is one of the great political leader belonging to a royal family in India. Their family had ruled the country for nearly 60 years. But that man is now, of course, he is above 50, he is not a boy. He still carries that impression. One of the interview I had seen, when he lost the election, he was telling, we will improve upon it, we will do better than anybody else in the world. That was a sense of message he was giving to the people, that he is under a wrong impression. उसको अपनी औकात का पता नहीं है. And until unless you appreciate this particular fact, you cannot be a successful. So that you are carrying an impression, you are a unique character, you have unique connections, unique capability, you have exposure to wherever, whatever the best companies in the world. But all that your capability, your ability is not able to give a guarantee to the organization it will turn into success. You may be very good orator, आपने बहुत अच्छा आपका पास होमवर्क है, but whatever is your presentation, it must be able to converting into, especially in the political action, you has to convert it into votes. And if you get votes, it converts into success. But whatever is your capability, you are under the wrong impression that you have to carry this. इस कड़वी गोली को आपको खाना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ही आप सक्सेस पा पाएंगे. यू आर अंडर द इम्प्रेशन that you are a unique character, but that doesn't convert into a success. You have to convert your uniqueness into success. Then the second is, nobody owes you anything.
किसी भी आदमी, एवरीबडी इज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, एवरीबडी इज टेकिंग हिज ओन कमिटमेंट्स, लायबिलिटीज, responsibility to the family, responsibility to the party, responsibility to the organization. तो कोई आपका, किसी ने आपको कोई कर्जाई नहीं है आपका. Nobody owes anything to you. People are just you. If you're a leader, people will try to follow you. So इस गलत फहमी में मत रहिए कि लोग मेरे कर्जाई हैं, जो मैं कहूँगा लोग मान लेंगे. तो दिस इज वन ऑफ द हार्ड फैक्ट. नोबडी ओज एनीथिंग टू यू. प्लीज एक्सेप्ट इट. इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, अगर आपने इस सच्चाई को नहीं माना, तो फाइनली जब आप वहाँ पर जाएंगे सक्सेस, तो मान लीजिए आपने लोगों को कहा कि सुबह शाम को 6 बजे आप रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाइए. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट के साथ इनकी क्या औकात है, नहीं पहुँचेंगे और हमने ये करा. यू आर अंडर सम रॉन्ग इम्प्रेशन. बट व्हेन यू गो देयर एट 6 o'clock, there was nobody. There is one example people gave, the गांव में there was one village, people were running short of milk. तो जो गांव की पंचायत ने ये डिसाइड किया, सब लोग सुबह जब मंदिर जाएंगे तो मंदिर में एक कंटेनर रख दिया, सब लोग 1 पाव दूध वहाँ डाल देंगे. एट द एंड 12-1 बजे तो दूध कलेक्ट करके गांव के गरीब लोगों को दूध बांट दिया जाएगा. एंड समबडी थॉट, यार सभी लोग बाकी दूध डालेंगे, मैं इसमें जा कर के पानी डाल देता हूँ. तो एट 12 बजे जब वो कंटेनर को खोला गया, देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क. इट वाज कंटेनिंग ओनली वाटर एंड वाटर. सो नोबडी इज ऑब्लाइज्ड टू. कोई वही आपका कर्जाई नहीं है. तो हर एक आदमी अपने मन का खुद मालिक है. डोंट अंडर दैट इम्प्रेशन यू मस्ट remove from your brain. This does not guarantee success. Doesn't give our happiness, our opportunities. अरे यार हमारे बाप ने उनका ये करा था इसलिए लोग कर्ज हमारा. नो, नथिंग डूइंग. इट डजंट क्रिएट. ये जो आप एप्रीहेंशन, ये जो इस कड़वी हार्ड पिल को आप खाइए और एक्सेप्ट करिए. इन सब गलत फहमियों के कारण ना तो आपको सक्सेस मिलेगी और ना ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी. एंड इट डजंट गिव एनी गारंटी ऑफ सक्सेस. फेलियर इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल. इसको नोट करिए. फेलियर एक पॉसिबिलिटी. इट इज़ नॉट ओनली जस्ट ए पॉसिबिलिटी. जब आप कोई काम करते हैं, देयर कैन बी 2 ऑप्शन. वन इज सक्सेस एंड सेकंड इज फेलियर. तो यू कंसिडर दैट फेलियर इज जस्ट पॉसिबल, दैट आई मे फेल. इट इज नॉट ओनली ए पॉसिबिलिटी, इट इज प्रोबेबल. प्रोबेबिलिटी इज दैट यू विल फेल. तैयार होकर जाइए कि आप फेल हो जाएंगे. देन अगर आप फेल हो गए तो योर माइंड सेट इट सेल्फ वॉज टेलिंग यू हैड ऑलरेडी ईटन दैट हार्ड पिल दैट देर इज ए सक्सेस. दैट फेलियर इज नॉट ए पॉसिबिलिटी बट इट इज ए प्रोबेबिलिटी. So that makes you a successful man. Your feelings do not always matter. आप अगर ये लेके बैठे हैं कि मेरी भावनाओं को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, या मेरी भावनाओं का लोग ध्यान रखेंगे, या भावनाओं से ड्रिवन है आप, आपका ड्राइविंग फोर्स सिर्फ आपके इमोशंस एंड आपकी भावनाएं हैं, वो आपको सक्सेस तक पहुंचा देंगी, तो ये भी आपकी गलत फहमी. दे डू नॉट वर्क. पीपल डोंट केयर फॉर योर इमोशंस. पीपल गो फॉर ए कंपटीशन. यू हैव टू वर्क. यू हैव टू अचीव द गोल. इन प्रोफेशन रिजल्ट्स, बिहेवियर मैटर्स मोर देन योर फीलिंग्स. सिर्फ भावनाओं को से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका बिहेवियर है. योर रिजल्ट्स का आप काउंट करते हैं, कितने आपके सक्सेस रेट्स हैं. दैट इज़ व्हाट पीपल आर टेलिंग.
Rahul Gandhi ka success rate is very poor. There are so many organizations where the success, it is the result must speak. Your results, your behavior, and matters more than your feelings. इस चीज़ को अपने दिल में बिठा के रखिए. Then fifth point is you are probably not as good as you think. आप दिल में बैठा के बैठे हुए कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, पर जब आप टेस्ट पे आए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और व्हेन द रियल जेन्युइन समस्या जब आती है, लोग आपसे, आपके जानने वाले पहचानने वाले आपसे हेल्प लेने की आते हैं, आपसे पैसे की मांग करते हैं, आपसे और कोई हेल्प लेने की चाहते हैं, तब आपको खुद ही पता लगता है कि जितनी गलतफहमी में आप थे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत गुड हैं, बट आप ऐसा नहीं हैं. इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करिए. यू आर नॉट दैट गुड. वही गुड है जिसको आपके जानने वाले, आपके साथ काम करने वाले आपको गुड मानते हैं, और वो आप गलत फहमी में है कि आप बहुत गुड हैं. देन ट्रू एक्सपर्टाइज कम्स विद ह्यूमिलिटी. बी हम्बल. आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं साहब बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ. अगर आप एक्सपर्ट हैं और हम्बल हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया को पता लग जाता है. एक अच्छा डॉक्टर है, उसको डंडोरा लेकर पीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं साहब एक अच्छा सर्जन हूँ. और ह्यूमिलिटी से आप पब्लिक के साथ ट्रीट करिए. एंड अच्छा, इफ़ यू आर ए गुड मैन, यू नो यू आर एन एक्सपर्ट, automatic goes to the people. Now you see, I am just giving you, there are certain schools, educational institutions are there. One of the most liked, most reputed institutions are mostly in India, those who are run by missionaries. They are called convent schools. Most of the people don't know what is convent. Convent is a nunnery where the nuns stay. ये बाहर अपने स्कूल के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा देने से कि आप फलाना ABC convent high school, you do not become a convent. Convent is not a convent, is the nunnery where nuns, those who teach there, those who work there, it is their hostel, it is a residence. So बहुत सारे लोगों ने, पर यू गो देयर, और कभी उनकी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट ओनली स्टैट्यूटरी डेट, लास्ट डेट, दिस एंड दैट इज देयर, बट दे हैव नेवर टू गो फॉर प्रेस फॉर एन एडवर्टाइजमेंट. पीपल अपने आप ही भागे भागे उनके चले जाते हैं. नाउ देयर इज ए, पहले ज़माने में तो लोग रात भर वहाँ बैठे रहते थे गेट पे जब फार्म भरते थे. सो यू हैव टू, द सक्सेस एंड द एक्सपर्टीज कम्स विद ह्यूमिलिटी and recognize and how much you do not know. ये भी जानिए, एक अच्छा इंजीनियर, उसको ये पता होता है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है. ये जान लेना कि मुझे कितना आता है, वहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती. आपको ये भी जानना है कि आपको क्या क्या नहीं आता है, और उसको रिकग्नाइज करना है. जिद पे नहीं अड़े रहना कि साहब नहीं मुझे आता है, मुझे आता ही है. नहीं आता है तो आप उसको रिकग्नाइज करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, और नहीं आ रहा तो उसको अपने अंदर अर्न करने की कोशिश करिए. देन लाइफ इज नॉट फेयर एंड दैट इज ओके. लाइफ सबके लिए बराबर नहीं होती. देयर आर सम पीपल दोज हु आर सफरिंग. लाइफ इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद एनीबॉडी. अगर आपकी लाइफ के साथ भगवान की तरफ से कोई फिजिकल इन्फॉर्मिटी है, या कोई और प्रॉब्लम है, आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये भगवान का वरदान है. भगवान का जो भी करा है दैट्स फेयर. इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत. इट्स ओके, लिव विद इट, यू कैन रन अवे. दिस फ्रीज यू फ्रॉम रिजेंटमेंट
and allows you to focus on what you can control. भगवान ने आपको ये सब कमियां दी हैं, तो इस अगर आपको ये सब पता है और आप ये जानते हैं कि ये भगवान का गिफ्ट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप सारा दिन अपना सिर नहीं फोड़ते रहेंगे, अपना स्यापा नहीं करते रहेंगे, सारा दिन रिजेंट ही करते रहें, भगवान ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, उसके साथ नहीं करा, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो दिस यू कांट हेल्प इट, दिस विल टेक केयर ऑफ योर रिजेंटमेंट एंड योर फोकस ऑन व्हाट इसमें जितनी कमियां हैं, इसमें कितनी कमियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सारा दिन स्यापाई करते रहेंगे, सारा दिन रिजेंट ही करते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सबके साथ होता है। सम पीपल आर देयर टू एडवर्टाइज इट, सम पीपल लिव विद इट। तो जीवन में उन सब कमियों के साथ जीने की आदत डालिए और डू नॉट एंड ट्राई टू कंट्रोल दोज वीकनेसेस, देन योर टाइम इज़ लिमिटेड। भगवान ने सबको बराबर टाइम में, भगवान इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, चाहे पुअर है, रिच है, गरीब है, इनवैलिड है, आप कुछ भी है, टू एवरीबडी गॉड हैज़ गिवन 24/7/365 डेज, एक साल 365 दिन का, 7 दिन का हफ्ता और 24 घंटे का एक दिन, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो उसी समय में आपको जो करना है वो कर सकते हैं। यू कांट बाई टाइम, खरीद नहीं सकते हो, बट बाइंग द टाइम, उसका एक सोल्यूशन है कि हर एक काम अपने हाथों से खुद मत करो। देयर आर सर्टेन जॉब्स with semi-skilled, unskilled, they have people having different skills are available in the market. You can hire a man, give that person. Don't try to do everything with your own hands. जब सब काम आप अपने हाथ में लेंगे तो काम पूरा नहीं हो सकता. So please try to distribute, hire a person, do whatever you can do. You cannot do everything. Decide what you will have to give up. और फैसला करिए, इतने सारे काम है, कौन सा काम मुझे छोड़ देना है। छोटे छोटे आपने एस्टैब्लिशमेंट शुरू करी, आटे की चक्की चलाई, फिर आपने फैक्ट्री लगाई, मिल लगा दी, फिर और दुनिया भर के यू केम इनटू IT सेक्टर। बट इज इट एसेंशियल दैट यू हैव टू कंटिन्यू टू डू ऑल द बिजनेसेस विद योरसेल्फ? थिंक ओवर इट विच यू कैन एफिशिएंटली डू and take a call and take a decision कि कौन सा काम हमने छोड़ देना है, और you are the only best person who can take a correct decision. Most eighth in your life, in your practical life, even in your own brother, sister, family, friends, institution, your colleagues, your mahalle ke neighbors, you must have come across people. Society is becoming self-centered now. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट केयर अबाउट यू, आपकी परवाह नहीं करते, आप भी मत करिए। इज इट एसेंशियल दैट एवरीबडी व्हेन यू कम आउट ऑफ द हाउस दैट एवरीबडी शुड बी रनिंग आफ्टर यू? आपको तबीयत थोड़ी सी खराब होगी, सारा मोहल्ला सभी आपके जानने वाले लोग आपके घर में आकर के इकट्ठा करते बैठ जाएंगे, दे विल स्टार्ट लुकिंग आफ्टर यू, डूइंग ड्रामा। बट द ग्राउंड रियलिटी इज पीपल डोंट केयर फॉर यू। ये अगर आप किसी आदमी को शक है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। इन दी लाइफ व्हेन यू रिक्वायर फंड्स, मनी, एंड यू डोंट हैव मनी, you have so many friends, they are all pretending that they are caring for you, they love you, they can die for you. But when you are in crisis, when you are in trouble, you require money, उस समय आप अपने आप को अकेला पाएंगे। You will love nobody, everybody will run away. और अगर किसी आदमी ने आपको उस समय, उस टाइम में कोई फाइनेंशियल हेल्प आपकी करी दी, और उसके बाद जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी चमड़ी उधेड़ देगा कि ये पैसा मैंने उस समय आपको हेल्प करा था, मैंने आपको ब्लड दिया था, मैंने आपको पानी दिया था, मैं यहाँ से दवाई लेके आया था बाज़ार से। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड टेकिंग हेल्प ऑफ योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. इट इज़ नॉट वर्थ. Try to reject such type of people, those who will not leave you till your death, कि साहब मैंने आपकी हेल्प करी थी.
तो ट्राई टू बी ऑफ योर ओन, अपने ऊपर खड़े होइए. दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग. देर आर थ्री एंड्स ऑफ मनी इन योर लाइफ. यू मस्ट अर्न एज मच एज पॉसिबल. जितना पैसा हो उतना कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, मेहनत से कमाइए. और देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग. जो बचपन की जो पॉवर्टी है उसको स्पेंड नहीं करने देती. अर्न मोर, स्पेंड मोर. क्योंकि जो समस्या अपनी लाइफ में आप पैसे से हल कर सकते हैं, उससे सस्ता और कोई सल्यूशन नहीं हो सकता. बिकॉज जो पैसा खर्च करते हैं उसके बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो यू विल अगेन रिप्लेनिश द शॉर्टेज ऑफ मनी. मनी मेकिंग इज नॉट ए बिग जॉब. अगर वो आदमी की हेल्थ आप पैसा खर्च करने से वापस ला सकते हैं, डू नॉट थिंक अबाउट. सबसे सस्ता सल्यूशन इज स्पेंडिंग मनी. एंड देन अर्न मनी, स्पेंड मनी एंड इन्वेस्ट मनी. अपनी लाइफ में फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट करिए सो दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट इन्वेस्टमेंट शुड गिव यू रिटर्न एंड यू कैन सर्वाइव. देर आर पीपल दोज मनी जब आती है स्पेंडिंग के नाम पे दुनिया भर की गलत हैबिट, जुआ खेलने लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं. अयाशी के और दुनिया भर के सोर्स है, वहाँ पर लोग जा कर के अयाशी करने लग जाते हैं. प्लीज़ डोंट गो टुवर्ड्स दैट. इन्वेस्ट समवेयर. एंड देन सम रिसेंटली आई हैव रेड समवेयर पीपल से अपनी लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे हैं, नेवर हैव वन सोर्स ऑफ इनकम, नेवर डिपेंड अपॉन दैट जॉब. आजकल जॉब का जो सिस्टम, इफ यू आर इन ए प्राइवेट सेक्टर यू डोंट नो व्हेन यू विल लूज द जॉब. टू हैव ए रिलायबिलिटी यू मस्ट बी हैविंग ए कंटिन्यूटी इन इनकम. अगर वो जॉब चली भी जाए, ट्राई टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी इफ यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ ए बिजनेस आल्सो. वो आपको अगर बिजनेस चल जाता है तो आपको दो सोर्स ऑफ इनकम हो जाए. एक कोशिश ज़रूर करिए. ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इस कोशिश में सक्सेस हो जाएं, और ट्राई टू हैव एन अदर स्मॉल बिजनेस. सारी उम्र एक ही नौकरी के ऊपर डिपेंड मत होइए. ट्राई टू फाइंड आउट एन अदर सोर्स ऑफ इनकम. बिजनेस करने की कोशिश करिए. अगर बिजनेस चल जाता है तो आपके बच्चों को भी नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी. एंड मनी को बहुत ही प्रॉपर जितना कोशिश हो सके मेहनत करके कमाइए. अर्न मोर, स्पेंड मोर एंड इन्वेस्ट मोर. एंड देन वाइल डूइंग बीइंग ए प्रोफेशनल, बी हम्बल, be humble, be, and it is the humility which propagates and sends a message to the people that he is a high class professional. एक डॉक्टर अगर आप जाते हैं तो अगर आपके साथ मिसबिहेव करता है, बदतमीजी से पेश करता है और बड़े बड़े बैनर भी लगा देता है, उससे आपकी उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होती. बट प्लीज़ सेंड द मैसेज टू द सोसाइटी विद ऑल द ह्यूमिलिटी एट योर disposal. We do not have with this sympathy, we have empathy. Sympathy मतलब तरस खाना. तरस मत खाइए. तरस से कोई आदमी ऊपर नहीं उठता. Have empathy with that. That empathy means putting your own feet in the shoes and try to find out कहाँ पर जूता कटता है. Then give a solution to that person. ये डू नॉट वांट के आपने साहब उसको प्रॉब्लम आई, आपने पैसे देकर उसकी समस्या को हल कर दिया, उससे वो ऊपर नहीं उठेगा. अगर किसी के साथ तरस से कोई उठ नहीं सकता, आप एम्पैथी रखिए. एंड बहुत सारी समस्याओं को लाइफ में, हर एक की लाइफ में समस्याएं आती हैं और आती रहेंगी. सब्र करिए, नज़रअंदाज करिए. कुछ चीज़ें पेशेंस से आपको मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें सब्र करने से मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी समस्याओं को नज़रअंदाज करना पड़ता है. तो ट्राई टू लर्न दिस सिंपल फार्मूलाज. कुछ सब्र करके, कुछ इंतज़ार करके और कुछ नज़रअंदाज करके लाइफ में सक्सेस मिलती है. देन लास्ट will be as your worst enemy. Who is your worst enemy?
हर एक इंसान के फ्रेंड हैं, उसके एनिमीज भी हैं. देयर आर वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो इन द लाइफ. देयर आर वर्स्ट एनिमीज आल्सो. योर वर्स्ट एनिमी इज योर सेल्फ. आपका सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ आप ही हैं. अपने आप की कमियों को, अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उसको डायग्नोज करिए एंड ट्राई टू रिमूव. एंड योर ओन फियर, बहुत सारे डर के कारण काम नहीं करते. आप खुद ही डरे हुए हैं. दैट लीड टू सेल्फ डिफीटिज्म. आप खुद ही अपने आप को हरा देते हैं. जब जो उस आदमी की सक्सेस कैसे आ सकती है जो आदमी खुद ही अपने आप को हरा रहा है. नेवर कम दैट, अलाउ दैट थिंग टू कम इन योर लाइफ. लाइफ देर आर देख चले, देर आर 3 L's. First L is life, second L is long, third is learning. Till the end, keep on learning, keep on fighting with the problems. Never अपने अंदर डर मत लाइए. डर के आगे जीत है. उसके आगे you get victory. Then limiting beliefs. बहुत सारे लोगों ने मिथ पाल रखी. तो लिमिट करिए. ये शनिवार है, ये आज मंगलवार है, शनिवार को लोहा नहीं खरीदेंगे, मंगलवार को वहाँ नहीं जाएंगे, सोमवार को ये नहीं करेंगे, वहाँ भगवान के यहाँ मत्था. भगवान सब जगह हैं, अपने घर ही में मत्था टेकिए. और ये जो दुनिया भर के आपने जितने ज़्यादा आपने बिलीफ पाल रखे हैं वो आपकी लाइफ के सक्सेस में हिंड्रेंस है. प्लीज़ डू नॉट हैव सो मैनी बिलीव्स. वो आपके नेवर रन फॉर ए परफेक्शन. परफेक्शन, फर्स्ट थिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. एंड व्हाट फॉर यू शुड, हु इज़ परफेक्ट? एवरीबडी हैज़ गॉट वन और दी. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. पीपल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट. कुछ इसी लड़ाई में सारी उम्र लड़ते रहते हैं कि मैं आई नीड परफेक्ट. अरे यार, परफेक्ट नथिंग इज़ परफेक्ट. और आज you reach the perfection point, tomorrow some new thing is coming. So to do the best possible. They call it a state of the art. Do something which doesn't have a history. Is a state of the art. और आजकल तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपने अडॉप्ट किया. दैट इज बाउंड्रीज आर सेट बाय यू. So that is the cutting edge of the technology. Latest technology को adopt. That is a cutting edge of the technology. So then your own fears, limiting beliefs and bad habits. Bad habits, offenses begins obstacles to success. Often the biggest obstacles are coming. कभी लाइफ में बड़े बड़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं. फाइनेंशियल है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, गर्मी आ गई, बरसातें, फ्लड आ गया. These are the obstacles of life and everybody has to face it. Please try to face it. And it is your worst enemy is you, yourself, your own fear, लिमिटिंग बिलीव्स को कम करिए. अपने फेथ, वो वहम जिसको बोलते हैं, दुनिया भर की आपने ये है वो है, बैड हैबिट्स. ऑफन द बिग ऑब्स्टिकल्स, दे आर द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस. जितने ये सारी कड़वी ये हार्ड पिल्स को अगर आप खाएंगे और उसको लेंगे और उसको अडाप्ट, खाने का मतलब यू विल अडाप्ट दिस पिल्स. इसके हिसाब से दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. अगर उसको अपने लाइफ में उतारेंगे तो सक्सेस इज़ बाउंड टू कम एंड 100% इट इज़ गोइंग टू कम. विद दिस आई conclude my lecture of 9 hard pills to swallow. These are the ground and the basic realities of life
जो कि आपको swallow करनी है if you want to be a successful man. With this, I request all my viewers to view this lecture, comment on this, share it with your friends and your relatives, and subscribe to my channel. Thanks a lot. Thanks a lot.